In this case, the relative error in Z will be given by A into relative error in the quantity A plus B into relative error in the quantity B plus C into relative error in the quantity C plus D into relative error in the quantity D. So let me have a question from your textbook. Actually, there is one question. Look at this. This is the question. The period of oscillation of a simple pendulum is T is equal to 2 pi under root L by G, where L is measured 20.0 centimeter, known to 1 millimeter accuracy, and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. What is the accuracy in the determination of G? So we have to find accuracy, and you know where accuracy ends, the error begins. Okay, it means we have to find error. Okay, accuracy का जो आखिरी पॉइंट होगा, एरर का वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, है ना। तो अगर आप एक्यूरेसी बताते हैं तो इसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरर। ठीक है, आप एरर बता देंगे, वहाँ से एक्यूरेसी शुरू हो जाएगी। ओके, सो किस में एक्यूरेसी चाहिए मुझे, जी में। इट मीन्स आई हैव टू कैलकुलेट द एरर इन जी, एंड फॉर दैट मुझे जी का फार्मूला लाना होगा। मुझे फार्मूला किसका दिया गया है, टी का। ओके, सो लेट मी राइट द फार्मूला फॉर जी। इट इज गिवन हियर, इफ टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L upon G, I'm going to do the square. After doing square, what will be, T square is equal to 4 pi square L upon G, and that's why G is equal to 4 pi square L upon T square. Correct? Now, if I have to find the error, this will be a complex quantity. So if we have to calculate the zero error, we have to go for relative error, and for relative error this should be delta G divided by G is equal to 4 pi square is a constant, no error will be in there, and here will be delta L upon L, because what is the power here, 1, and 1 power means 1 multiplication, और 1 का मल्टीप्लीकेशन वही क्वांटिटी देता है। ओके, इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट इट 1 into delta L upon L plus, now what is the multiplication for 2, okay, into delta T upon T. Now the problem is, what is the value of delta L, what is the value of L, what is the value of delta T, and what is the value of T. If you know it, you can calculate. Okay, so coming back to our question, L is given to you. Okay, how much it is, 20.0 centimeter, and what is its accuracy, 1 mm. So convert 1 mm into centimeter, because your measurement is in centimeter. So accuracy, I have told you, accuracy means what, the error. Okay, not means that, but where accuracy ends, error will begin. So if you are calculating the highest limit of accuracy, it means the lowest limit of error. Okay, जहाँ पे आपकी एक्यूरेसी ख़त्म होगी वहीं से एरर शुरू होगा। तो आप चाहे एक्यूरेसी की सीमा आप कैलकुलेट कर लें या फिर एरर की लिमिट कैलकुलेट कर लें, बात तो एक ही होगी। सो दिस विल बी डेल्टा एल and this will be what,
L. Okay, so can we put it here? It will be Yes, sir. 1 millimeter can be written as what? 0.1 centimeter divided by 20 centimeter. 20 Okay, centimeter. plus 2 into delta T by T. What is capital T here? Do you know? Look, here it is written capital T, and this capital T is known as time period. And what is time period? Do you know? Time period means time taken for one oscillation. Here you are not being given one oscillation. How many oscillations have been given? 100 oscillations. So how can you calculate time period? It can be calculated by total time divided by number of oscillations completed. Okay, time period means what? The total time taken divided by the number of oscillations completed. Okay, so we can write it here. Let me write. T is equal to T upon n. Now ये एक दूसरा फार्मूला बन गया जिसमें n नंबर है. ओके, और नंबर में तो कोई एरर नहीं होगा ना भाई. इफ यू आर टेकिंग 20 इट विल बी 20 फॉर एवर. उसमें 20 का 21 नहीं हो. ओके, सो आई कैन राइट हियर डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाउ मच? डेल्टा टी बाई टी, बिकॉज देयर विल बी नो एरर इन एन. ये इसमें कोई भी एरर नहीं होगा क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन. तो जिसको आप मेजर करते हो एरर तो उसमें आती है ना. ओके, सो यहाँ से अगर आप देखो तो डेल्टा टी बाई टी विल बी हाउ मच? डेल्टा टी कितना होगा? व्हाट इज एक्यूरेसी? रिजोल्यूशन का मतलब एक्यूरेसी ना. Sir, 1 second. 1 second. And what is the time that is measured? 90 seconds. 90 seconds. So here it will be 1 second divided by 90 seconds. Okay, so I can put it here 1 by 90. It will be 1 by 200 plus 2 by 90. Just take LCM. What will be? LCM कितना होगा? How much? 900 ले लें? नहीं, 900, 1800. Sorry? 1 by 200 कैसे आए? आप वहाँ का ऊपर का डेसिमल हटाओगे तो जितने प्लेस पे डेसिमल है उतना जीरो नीचे चला जाएगा. ओके, सो वी कैन राइट डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू हाउ मच हियर? 1 बाई 200 प्लस 1 बाई 90. You can take LCM as 1800. It will be 90 and here will be 200. It means how much? 290 divided by 1800. 10 will become. हाँ बोलिए. सर वो 2/90 है ऊपर. अच्छा 2/90 है. ओके, so here will be 400, here will be 490, here will be 49 upon 180. Okay, so this is what the relative error in G. If it is asked percentage error, what to do? What to do? हाँ, just multiply with 100, and that's why here will be 49 divided by 180 into 100. 10 is again cancel. It will be 490 divided by 18. Can we divide? Sorry, 18. 18 to 36. कितना बचेगा? 13.
और फिर 18 7 जा, सो ऑलमोस्ट थोड़ा सा और आगे जाएंगे सर आपको मिल जाएगा 27 कितना आएगा, आएगा शायद 490 डिवाइडेड बाय 18, 27.22%. यस सर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। लास्ट टू लास्ट ईयर एक जी का क्वेश्चन था, थोड़ा ख़तरनाक था, आप ढूंढिएगा मिलेगा, एरर से रिलेटेड था, ठीक है। और उसमें एक्यूरेसी वहाँ पे भी दी गई थी। तो एक्चुअली आपको एक्यूरेसी से लेके थोड़ा फेमिलियर होना। एक्यूरेसी का मतलब एरर ही है, मतलब इनडायरेक्टली आपको बोला जाता है। ओके, नाउ यस सर। चैप्टर में हमें जो कैलकुलेशंस करनी है या जो हमारी फिज़िक्स है वो ओवर हो गई। अब कुछ मैथमेटिकल पार्ट्स हैं जिसका साइंस में हम फॉलो अप रखते हैं, आप केमिस्ट्री में भी उनको पढ़ते हैं। आपका केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर होगा वो उससे रिलेट करता है, हम उस पे आते हैं। और पहला है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। Scientific notation of writing a number. आपको पता है जो फिज़िक्स है या केमिस्ट्री है, एक्चुअली ये मेजरमेंट जब आता है हमारे पास तो नंबर्स में लिखा जाता है। सपोज मैंने आपको बोला आप अपने घर से स्कूल की डिस्टेंस मेजर करिए। सपोज दिस इज़ द स्कूल एंड दिस इज़ योर हाउस। ओके, सो स्कूल से हाउस का जो डिस्टेंस आया वो आपने कहा 2 किलोमीटर। ओके, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 2 किलोमीटर नहीं लिखेंगे, हम इसको 2000 मीटर्स लिखेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम इसको 2 जीरो और बढ़ा के सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। सो एक ही मेजरमेंट को 3 लोगों ने 3 नंबर से प्रेजेंट किया एंड ऑल द 3 मेजरमेंट्स आर करेक्ट। ओके, अब जीरो को काउंट करें तो पहले में कोई नहीं है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 5 है ना, इस तरीके। तो साइंस का जो साइंटिफिक नोटेशन है वो जीरोज के जो कैलकुलेशंस होते हैं उनको मिनिमाइज करता है। उनको कहता है कि आप इनको क्या करो, 10 की पावर में डाल दो और जो नंबर है आप उसको लिखो। तो ऐसे होता है साइंटिफिक नोटेशंस में, होता है a पॉइंट बी सी इंटू 10 पावर सी, सॉरी d, मतलब आपके जो डिजिट हैं, ओके, उस डिजिट को आपको यहाँ रखना है, बाकी जीरोज है, डेसिमल के प्लेसेस हैं, आपको उन्हें कहाँ रखना है, 10 की पावर में। और जब आप आगे जाएंगे फिजिक्स में तो इसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। व्हाट इज इट? ऑर्डर। जो 10 की इंडेक्स होती है आप उसे ऑर्डर कहते हैं। जैसे आपने मॉलिक्यूलर लेवल के डिस्टेंस को डिसाइड किया था, याद है, वो ऑलिव ऑयल वाला लेकर के, तो उसका जो रिजल्ट आया 10 पावर -8 या 10 पावर -10 whatever that is coming to you, वो मॉलिक्यूलर डायमीटर या मॉलिक्यूलर साइज का ऑर्डर हो गया। नाउ यू कैन से व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, यू कैन से 10 पावर -10 मीटर। Okay, and this 10 power -10 is what? Actually the power of 10 when we express the size of molecule. बाकी जो डिजिट में आया हम उसको किनारे रख देते हैं, ठीक है। तो ये नंबर होता है और ये ऑर्डर होता है, ठीक है। अब
पहले वाले का 2.0 किलोमीटर लिखेंगे, दूसरे वाले को क्या लिखेंगे 2.0 इंटू 10⁻3, तीसरे को क्या लिखेंगे 2.0 इंटू 10⁻5। और आगे यूनिट तो लिखनी है, आपको पता है इन फिजिक्स मेजरमेंट देयर शुड बी द नंबर, देयर शुड बी द यूनिट। ओके, अब जब आप एक साइंटिफिक नोटेशन कर लेते हैं, फिर सिग्निफिकेंट नंबर्स की बात होती है या सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात होती है। सो नेक्स्ट वन इज केमिस्ट्री में पढ़ लिया है ना ये? नो सर, डिलीट हो गया, मैम ने पढ़ाया। केमिस्ट्री में मैम ने पढ़ाया होगा, आप लोगों को पढ़ाया है सबको? बोलिए। नो सर। नहीं पढ़ाया? अच्छा, मैम ने मेरे लिए छोड़ दिया। और एक्चुअली हम केमिस्ट्री के लिए छोड़ते हैं, हम पढ़ाते नहीं हैं। चलिए खैर, तो जब सिग्निफिकेंट फिगर्स की या सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बारी आएगी, आपको पता है हिंदी में सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है? महत्वपूर्ण, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड व्हाट? सिग्निफिकेंट। ओके, सो जब आप कोई नंबर लिखते हैं, जैसे अभी पीछे आपने कैलकुलेट किया, आया था 27.2222, okay, 490 by how much was there? 18. So if you calculate it, you will get so many places beyond decimal. Okay, and if somebody is terminating this, suppose I am writing 27.222. Now what are the significance here? क्योंकि इसमें सब महत्वपूर्ण तो नहीं हो सकते ना। अगर सभी महत्वपूर्ण होते, सभी सिग्निफिकेंट होते, तो फिर तो हम डेसिमल के 10 प्लेस तक जाते, 20 प्लेस तक जाते, है ना? इफ ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, व्हाई शुड वी लीव एनीबडी? नो नंबर शुड बी लेफ्ट। वो सारे के सारे लिखे जाने चाहिए थे। तो हम जब भी कोई मेजरमेंट लेते हैं, तो हमें कुछ सिग्निफिकेंस शो करना पड़ता है नंबर्स का, या होता है सिग्निफिकेंस नंबर का। हम उन्हीं को अपने कैलकुलेशन में रखते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप मेजरमेंट लेने जाते हो, तो मेजरमेंट में कुछ चीज़ें रिलायबल हो। ओके, कुछ चीज़ें रिलायबल मतलब सपोज कि मैंने आपको एक स्केल दिया और इस स्केल से हमने आपको एक पेंसिल मेजर करने को बोला। ओके, आप जाते हैं और यहाँ 0 से देखते हैं इसको, 0 1 2 3। ये 3 तक तो बिल्कुल रिलायबल थिंग है ना भाई, इसमें तो किसी को शंका शुबा नहीं है। इट्स वेरी कंफर्म कि जो भी पेंसिल है उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा। सो दिस इज रिलायबल। ओके, अब इसके बाद आप आते हैं 4 यहाँ होता है और इसके बीच के 5 पार्ट्स में हमने बांट दिए। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 0.2, और ये सेंटीमीटर में। और आपका जो पेंसिल का पहुंचना है, टिप का पहुंचना है, वो किस पे है? 2 नंबर वाले पे। सो हाउ मच इट विल बी? 0.4। अब आप ये कह सकते हो कि उसके पर्सनल एरर हो सकते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकते हैं, या किसी भी तरीके का एरर हो सकता है। तो वो एरर किस में दिखेगा? वो डेसिमल के बाद वाले नंबर में दिखेगा। अगर वो लिखता है कि इसकी लेंथ कितनी है? 3.4 सेंटीमीटर है, तो क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है 3 से? नहीं है। दिस इज मोस्ट रिलायबल थिंग दैट यू आर हैविंग, बट यू हैव अ डाउट ऑन दिस 0.4। ओके, एक और चीज अगर लिख देता कोई, तो ये तो सबसे डाउटफुल मेजरमेंट होता। ओके, Yes, sir. तो जब कोई नंबर आप लिखते हैं,
जब कोई मेजरमेंट आप लिखते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो आपका रिलायबल नंबर जितने भी हैं और जो फर्स्ट अनरिलायबल डिजिट है, इनको मिला करके जो डिजिट्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं. सो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट? लेट मी राइट द डेफिनेशन. देखिए, all reliable and first unreliable digit in any measurement are called, significant digits. Okay, so this is the definition. Now there are some rules. Okay, rules to decide significant digits. एक्चुअली आपको एक नंबर दे दिया जाता है, एक मेजरमेंट दे दिया जाता है, आप कैसे पता करोगे कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? ओके, सो पहला जो रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट. कोई भी मेजरमेंट जब दे दिया जाएगा आपको, सपोज आई एम गोइंग टू टेल यू 231 सेंटीमीटर और 212.3 मे बी लाइक दैट. सो इसमें जितने भी नॉन जीरो मीन्स जीरो ना हो, तो आपका 1 to 9 डिजिट्स हैं, वो सारे के सारे क्या गिने जाएंगे? सिग्निफिकेंट. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए भाई? 3. इसमें कितने हो गए? ओके, तो ये तो पहला रूल हो गया. अब आते हैं कि क्या ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होगा क्या? और उस जीरो को लेके बहुत सारे नियम कानून बन जाते हैं. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू सेकेंड पार्ट. All zeros coming in between two non-zeros are significant. ओके, होता है ना, दो अच्छे लोगों की या अच्छे लोगों की संगत में रहो तो बुरे भी अच्छे बन जाते. तो अगर दो लोगों के बीच में, दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरोज आ जाते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल 1 डबल ट्रिपल 0 1 या फिर 2.005. ओके, सो ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है ही है. इनके बीच आने वाले सारे जीरो क्या होंगे? तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा?
टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, और यहाँ पर सर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। ओके, अब आते हैं यस सर। कि अगर जीरो लेफ्ट में होगा किसी नन जीरो के, तो क्या वो सिग्निफिकेंट होगा? राइट में होगा तो क्या सिग्निफिकेंट होगा? तो आपको ये तो पता है कि एक इंटीजर के पहले चाहे जितना जीरो लगा लो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? आपको कोई बोले 005, तो क्या उसे 005 लिखना सही है? उसे 5 भी तो लिखा जा सकता है। इसका मतलब वहाँ उस जीरो का कोई मतलब नहीं। ओके, सो वो इनसिग्निफिकेंट है, केवल 5 आपका क्या है? सिग्निफिकेंट। और ऐसे ही अगर आप 500 लिखते हो तो है तो मायने तो हैं, बट साइंस ये कहता है कि आप 500 को 500 तो नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? 5 × 10⁻²। तो आपका डिजिट कितना रहा? आपका डिजिट रहा 1। इसका मतलब ट्रेलिंग जीरोज भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, प्रीसीडिंग जीरोज तो नहीं होते। प्रीसीडिंग जीरोज का मतलब जो पहले आते हैं, ओके, और वो हम कंसीडर भी नहीं करते। प्रीसीडिंग जीरो का कोई केस नहीं होता फॉर इंटीजर, फॉर अ होल नंबर प्रीसीडिंग जीरो नहीं लिया जाता। तो हमारे पास सिर्फ पोस्ट कमिंग जीरोज हैं या ट्रेलिंग जीरोज हैं। सो व्हाट विल बी द थर्ड पॉइंट? ट्रेलिंग जीरोज in whole number, sorry, trailing zeros, in whole numbers are insignificant, sorry, okay, let me show the example. 300, 500, 20000. How many significant digits are here? How? 1. Okay, अच्छा मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ इसको। ओके, अच्छा यहाँ पे कितने? 1 1 ओके, इस वाले में कितने? 3, बिकॉज ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पर ये वाला तो होगा, एंड फॉर दैट रीजन दिस विल बी हैविंग 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पर ट्रेलिंग जीरोज नहीं लिए जाते, नहीं काउंट किए जाते। क्या? नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 4. Point number 4, what about the trailing zeros in a number which is having decimal, which is not whole number, okay, which is not whole number, that is a fraction, and not fraction, you can say decimal having number. So all trailing zeros in a number having decimal and value
less than 1 will be significant. What does it mean? It means that if I am writing, एक नंबर मैं लिखता हूँ जिसकी वैल्यू 1 से कम हो, लेस दैन 1, तो शुरुआत 0 से होगी, 0.300, 0.521000. ओके, यहाँ पे ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे. Significant. Okay, so what will be the total number of significant digits? 3 significant digits. How many are here? Sir, 6. 6. Okay, so this is about trailing zeros in a number which is having its value less than 1. Now, what about preceding zeros? Point number 6, 4, 5. All preceding zeros coming before any non-zero digit in a number having value less than 1 will be non-significant. Now, आपको एक ऐसी डिजिट चुननी है जिसकी वैल्यू कितनी हो? लेस देन 1. शुरुआत कैसे होगी? 0 से. ठीक है, और उसमें नन जीरो हो और उसके पहले ज़ीरोज़ हों. ठीक है, लाइक दिस. तो जितने प्रीसीडिंग ज़ीरोज़ होंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे. और आपका कितना होगा टोटल सिग्निफिकेंट नंबर? 3. Sir, 3. ऐसे ही 0.002. हाउ मेनी? Sir, 1. 1. अच्छा, मैं लिख रहा हूँ 0.00303. हाउ मेनी? Sir, 3. 3. ओके, अब इसको कोई मिसअंडरस्टूड नहीं करेगा कि सर ने बोला था कि नन जीरो से पहले आने वाला, तो ये भी तो नन जीरो से पहले ही है ना. ये नन जीरो हो गया, वो बीच में है और इसके लिए वो दूसरा वाला लॉ चलेगा. अ जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट नन जीरो डिजिट विल बी सिग्निफिकेंट. ओके, तो ये आपके इतने सारे नियम, कायदे, कानून हैं जीरो को कंसीडर करने के लिए. कब वो सिग्निफिकेंट होगा, कब वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा. ठीक है, आपके यहाँ बुक में एक क्वेश्चन, लुक एट दिस. स्टेट द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग. यू आर बीइंग गिवन हियर द 3
numbers. The first one is 0.007 meter square. What? How many? In the first one, it is given 0.007 meter square. So this is the number which is less than 1, and all preceding zeros will be non-zero. So this is significant, और बाकी सारे नहीं होंगे. So how many are here? Only one. One. Okay. For the second one, Sir, 3. 2.64 into 10 raised to power 24. 20. यहाँ पे ऑर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं होता, केवल मुझे डिजिट से लेना देना होता. एंड दोज आर हाउ मेनी? 3. 3 significant digits. Okay, if I am writing 0.2370, okay, centigram per centimeter cube, how many? How many? Trailing zeros in a number which is less than 1 should be counted as significant. 4. How many are here? Sir, 4. 4. Sir, 4. Okay. So this is all about